الله الرحمن الرحيم. أما التصور فهو وينقسم على قسمين، أحدهما يقال له التصور وثانيهما يعبر عنه بالتصديق. أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم، والمراد بالحكم نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، وإن شئت قلت إيقاعا أو انتزاعا. وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، كما إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه. وينقسم على قسمين، قسمين یہ مجرور ہے على فعل کی وجہ سے. اس کے بعد ہے احدهما يقال له التصور. احدهما یہ مبتدا بن جائے گا اور یقال فعل مجهول ہے. التصور یہ یقال کا نائب فاعل ہے. وثانیہما یہ بھی مبتدا ہے. یعبر یہ بھی فعل مجهول ہوگا. عبر یعبر تعبیرا باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اما التصور. التصور یہ بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. فهو الادراک الخالی عن الحکم. هو مبتدا، الادراک یہ خبر بن جائے گا اور عن الحکم یہ خالی کے متعلق ہو کر کے یہ خالی جو ہے ادراک کی صفت ہے. والمراد بالحکم، المراد مرفوع جو ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور بالحکم یہ المراد کے متعلق ہو جائے گا. نسبت امر الی امر آخر. نسبت رفع کو پڑھا ہم نے اس پر، یہ خبر ہے. کیا ہے یہ؟ خبر ہے. ایجابا او سلبا. وان شئت قلت مخاطب کا صیغہ. وان شئت قلت ایقاعا او انتزاعا. یہ مفعول بن جائے گا قلت کا. قلت کا. وقد يفسر الحكم، يفسر فعل مجهول، الحكم اس کا نائب فاعل، بوقوع النسبة او لا وقوعها. وقوعها کو پڑھ لیں چونکہ اس کا عطف ہے وقوع النسبہ پر. اس پر وقوع النسبة. كما اذا تصورت یہ بھی مخاطب کا صیغہ ہے. زیدا وحده او قائما وحده، یہ وحده حال بن جائے گا. من دونی، دونی پر جر ہے من حرف جر کی وجہ سے. ان تثبت القیام، تثبت اس پر فتح ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، اور قیام یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. لزید او تسلبه عنه، او تسلبه عنه. یہ ابتدا ہونے کی وجہ سے تمہیں تھوڑی تھوڑی ترکیبیں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں عبارت پڑھنے کی عادت ہو جائے. وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ، اور علم منقسم ہوتا ہے دو قسموں پر. علم منقسم ہوتا ہے دو قسموں پر. احدہما، ان میں سے ایک، یقال لہ التصور، کہا جاتا ہے اس کو تصور. وثانیہما، اور دوسرے، یعبر عنہ بالتصدیق، تعبیر کیا جاتا ہے اس کو تصدیق سے. تعبیر کیا جاتا ہے اس کو تصدیق سے. وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ، اور علم منقسم ہوتا ہے، علم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں پر. ان میں سے ایک کو تصور کہا جاتا ہے. وَثَانِيهِمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ، اور دوسرے کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس عبارت میں کیا بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس عبارت میں علم کی قسمیں بیان کی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم. بہرحال تصور تو وہ ایسا ادراک ہے جو خالی ہو حکم سے. وہ ایسا ادراک ہے، ایسا امر ہے. ادراک کو مانا امر. ایسا امر ہے جو خالی ہو حکم سے، خالی ہو حکم سے. تصور کی تعریف آپ نے جو پڑھی ہے آسان منطق میں، وہ کون سی کیا تعریف ہے؟ یعنی اس میں حکم نہ ہو. تصور وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو، یعنی اس میں حکم نہ ہو. وہی تعریف انہوں نے بھی کی ہے. دیکھو، اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم. تصور وہ ایسا امر ہے جو خالی ہو حکم سے، یعنی اس کے اندر حکم نہ ہو، اس کے اندر حکم نہ ہو. اب یہ جو حکم ہے کس چیز کو کہیں گے؟ حکم کہیں گے کس چیز کو؟ تو حکم کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کی ہے. حکم کی تعریف آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے تو یہاں پر پڑھ لو. والمراد بالحکم، اور مراد حکم سے نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک امر کی
एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ निस्बत करना ईजाबन औ सल्बन, या तो ईजाबी या सल्बी, या तो ईजाबी या सल्बी। एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ निस्बत करना ईजाब के एतबार से या सल्ब के एतबार से। ईजाब और सल्ब तुम्हारी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इल्म नहव के अंदर तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इल्म सर्फ के अंदर मुस्बत और मनफी, मुस्बत और मनफी पढ़ा है ना। ज़ैद खड़ा है, ये क्या है? मुस्बत है, और ज़ैद खड़ा नहीं है, ये क्या है? मनफी है। अगर एक चीज के लिए किसी दूसरी चीज को साबित किया जाए तो उसको कहते हैं मुस्बत, उसको कहते हैं मुस्बत। और अगर एक चीज की दूसरी चीज से नफी की जाए तो उसको कह देते हैं मनफी, उसको कह देते हैं मनफी। मुस्बत का एक नाम है ईजाब, मुस्बत का एक नाम क्या है? ईजाब। और मनफी का एक नाम है सल्ब, मनफी का एक नाम है सल्ब। जैसे ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, ये मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है ज़ैद खड़ा है, तो इसमें खड़ा होने को ज़ैद के लिए साबित किया जा रहा है ना, तो इस बात है खड़ा होने का ज़ैद के लिए इस बात है। तो अब हम ये कहेंगे कि इसमें ज़ैद खड़ा है, इसमें जो निस्बत है वो निस्बते ईजाबी है। कौन सी है? निस्बते ईजाबी। और एक ये कि ज़ैद खड़ा नहीं है, ज़ैद खड़ा नहीं है, इसमें ज़ैद के लिए खड़ा न होने को साबित किया जा रहा है, ज़ैद के लिए खड़ा न होने को साबित किया जा रहा है। तो खड़ा ना होना ये चूंकि मनफी है, क्या है? मनफी, इसलिए इस निस्बत को कहेंगे निस्बते सल्बी। क्या कहेंगे इसको? निस्बते सल्बी। आगे बात समझ में? उसी को इन्होंने क्या कहा? निस्बतु अम्रिन इला अम्रिन आखरा ईजाबन औ सल्बन। तो हुक्म की तारीफ क्या हुई? हुक्म कहते हैं एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ निस्बत करना, वो निस्बत चाहे ईजाबी हो या वो निस्बत सल्बी। निस्बत अम्रिन इला अम्रिन आखर, एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ निस्बत करना ईजाब या सल्ब के एतबार से। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल ना कर रहा हो ईजाब और सल्ब के कहने का, अगर तुम्हारा दिल ना कर रहा हो ईजाब और सल्ब के कहने का, कहते तो एक लफ्ज हो रहा है इसके लिए ईक़ाअन व इंतिज़ाअन, ईक़ाअन व इंतिज़ाअन। निस्बते ईजाबी जो है, निस्बते ईजाबी, ज़ैद खड़ा है, इसमें आप चाहे तो ये कह दें कि इसमें निस्बते ईजाबी है, या चाहे तो ये कह दें कि निस्बते ईक़ाई है। क्या है? निस्बते ईक़ाई। ऐसे ही ज़ैद खड़ा नहीं है, इसमें अगर आप चाहें तो कह दें कि निस्बते सल्बी है, और अगर चाहें तो कह दें कि निस्बते इंतिज़ाई। निस्बते इंतिज़ा का मतलब होता है खींचना, इंतिज़ा का मतलब है खींचना, निस्बत को खींच लिया हमने, इस बात जो था किसी चीज का उसको क्या कर लिया हमने? खींच लिया। ज़ैद खड़ा है तो इसमें खड़ा होने का इस बात है, हमने इस बात को खींच लिया, मतलब क्या हुआ? ज़ैद खड़ा नहीं। आगे बात समझ में? तो निस्बते ईजाबी, इसका दूसरा नाम क्या है? निस्बते ईक़ाई। इसका दूसरा नाम क्या है? निस्बते ईक़ाई। ज़ैद खड़ा नहीं है, निस्बते सल्बी, इसका दूसरा नाम निस्बते इंतिज़ाई, निस्बते इंतिज़ाई। मुसन्निफ कहते हैं चलो ये भी अगर ना कहना चाहो तो एक लफ्ज और बता ही देता हूं तुम्हें, एक लफ्ज में और बता देता हूं। ज़ैद खड़ा है, इसमें निस्बते ईजाबी भी कह सकते हो, निस्बते ईक़ाई भी कह सकते हो, और चाहे तो कह सकते हो कि वक़ूअ निस्बत। क्या है? वक़ूअ निस्बत। और ज़ैद खड़ा नहीं है, इसमें निस्बत कौन सी है? निस्बते सल्बी भी कह सकते हो, निस्बते इंतिज़ाई भी कह सकते हो, और चाहो तो ये कह लो कि ला वक़ूअ निस्बत। क्या है इसमें? आगे बात समझ में? तो ये तीन लफ्ज हो गए आपके पास में, ईजाबी और सल्बी, निस्बते ईजाबी और सल्बी, या निस्बते ईक़ाई या निस्बते इंतिज़ाई, या वक़ूअ निस्बत और ला वक़ूअ निस्बत, वक़ूअ निस्बत और ला वक़ूअ निस्बत। आगे बात समझ में? तो तसव्वुर की तारीफ क्या हुई? तसव्वुर, तसव्वुर वो अम्र है जो हुक्म से खाली, तसव्वुर वो अम्र है जो हुक्म से खाली। इन्होंने इदराक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तसव्वुर वो इदराक है जो हुक्म से खाली। उसके बाद में हुक्म की तारीफ कर दी कि हुक्म किसको कहेंगे? हुक्म कहते हैं एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ, एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत करना, वो निस्बत चाहे ईजाबी हो या वो निस्बत सल्बी हो। किसी को दूसरे लफ्ज़ में कहना चाहे कि
वो निस्बत इकाई हो या इंतिज़ाई हो, या और तीसरे लफ्ज़ों में कहना चाहें तो वुक़ूई निस्बत हो या ला वुक़ूई निस्बत, वुक़ूई निस्बत हो या ला वुक़ूई निस्बत हो। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। कमा इज़ा तसव्वरना ज़ैदन बअदहू औ क़ाइमन बअदहू। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने बाकायदा तसव्वुर को समझाया। तसव्वुर को तारीफ तो कर दी मुसन्निफ़ ने, मिसाल से समझाया नहीं था, बीच में हुक्म की तारीफ के लेकर के आ गए। अब ये मिसाल से इसको समझा रहे हैं तसव्वुर को। जैसे एक मिसाल है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, इसको अरबी में बनाए तो क्या बनेगा? ज़ैदुन क़ाइम, ज़ैदुन क़ाइम, ये अरबी में बनेगा। ठीक है, ज़ैदुन क़ाइम, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, इसके अंदर तो हुक्म है, इसके अंदर हुक्म है खड़ा होने का। हम क्या करेंगे? तन्हा ज़ैद, तन्हा ज़ैद का तसव्वुर करें या तन्हा क़ाइम का करें, तन्हा क़ाइम का करें, तो कोई हुक्म होगा इसके अंदर? खाली ज़ैद या अम्र या बकर या कोई भी चीज़ आप ले लें, जामा मस्जिद, मदरसा, गदरपुर, रुदरपुर, जो चीज़ भी आप लें, खाली एक एक चीज़ ले लें, तो एक एक चीज़ जितनी भी आप दुनिया की लेंगे वो सारी की सारी तसव्वुर, वो सारी की सारी क्या होंगी? तसव्वुर। ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ ले ली, बहुत सारी चीज़ें ले ली आपने, लेकिन निस्बत नहीं कायम, निस्बत नहीं कायम की। ज़ैद एक, क़ाइम अलग, इन दोनों को मिलाया नहीं आपने, ज़ैद क़ाइम को, ज़ैद को अलग रखा, क़ाइम को अलग रखा, नासिब को ले लिया, आकिल को ले लिया, आकिल के माना खाने वाला, आकिल के माना खाने वाला, ज़ाहिर को ले लिया, नाइम को ले लिया, तो अलग अलग बहुत सारे अल्फाज आपने ले रखे, मिलाया नहीं एक दूसरे से मिलाया नहीं। तो बहुत सारे अल्फाज भी अगर आप ले रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं उनका, तो सारे के सारे अलग अलग ये तसव्वुर, अलग अलग क्या है? ये तसव्वुर है। जब तक आप इनको मिलाएंगे नहीं, एक दूसरे के लिए निस्बत साबित नहीं करेंगे, एक की निस्बत दूसरे की तरफ जब तक नहीं करेंगे, ये सब के सब क्या रहेंगे? तसव्वुर, सब के सब क्या रहेंगे? तसव्वुर रहेंगे। उसी को इन्होंने समझा, देखो कमा इज़ा तसव्वरता ज़ैदन बअदहू, जैसा कि आप तन्हा ज़ैद का तसव्वुर करें, औ क़ाइमन बअदहू, या तन्हा बअदहू का तसव्वुर करें, या तन्हा बअदहू का तसव्वुर करें, मिन दूनी अन तुस्बितल क़ियाम लिज़ैदिन, बगैर इसके कि आप क़ियाम को साबित करें ज़ैद के लिए, बगैर इसके कि आप क़ियाम को साबित करें ज़ैद के लिए, औ तस्लुबहू अन्हु, या ज़ैद से उसका सल्ब करे, या ज़ैद से उसका सल्ब करे। मतलब ज़ैद खड़ा है तो ये तो क़ियाम का इस्बात हो गया, ये तो क़ियाम का इस्बात हो गया ज़ैद के लिए, और ज़ैद खड़ा नहीं है, ज़ैद खड़ा नहीं है, ये क़ियाम का क्या हो गया? ज़ैद से सल्ब हो गया, ज़ैद से सल्ब हो गया, यानी निस्बत सल्बी आ गई इसके अंदर निस्बत सल्बी आ गई है, निस्बत इजाबी नहीं। तो उसको कहा इन्होंने औ तस्लुबहू अन्हु, या आप उससे सल्ब करें। तो ये जो है तसव्वुर की तारीफ हो गई। तो तसव्वुर किसको कहेंगे? तसव्वुर वो अम्र है या वो इदराक है जो हुक्म से खाली। उसके बाद मुसन्निफ ने क्या किया? हुक्म की तारीफ की है कि हुक्म कहते हैं निस्बतु अम्रिन इला अम्रिन आखरा इजाबन औ सल्बन, को एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ निस्बत करना इजाबन, इजाब के तरीके पर या सल्ब के तरीके पर। फिर फरमाया कि अगर आप इजाबत और सल्बन को चाहे तो इकान और इंतजाम से भी ताबीर कर सकते हैं, या चाहे तो वुक़ूअ निस्बत और ला वुक़ूअ निस्बत से भी ताबीर कर सकते हैं। मतलब ये कि ये सब एक ही नाम, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम, एक चीज के मुख्तलिफ नाम है। जैसे मिसाल के तौर पर ये है इंज़िमाम, इसका नाम है। अब हम इसको कहने लगे कलवा, तो ये भी नाम तो इसी का है नाम, या हम इसको कहने लगे तेली, तो नाम है तो एक ही आदमी का। इंज़िमाम आप इसको कह लें, या कलवा कह लें, या तेली कह लें, या और कुछ भी कह लें, इसको नाम एक ही आदमी का है। तो ऐसे ही ये निस्बत एक अम्र की दूसरे अम्र की तरफ जब की जाएगी, तो अगर उसमें एक चीज को दूसरी चीज के लिए साबित किया जा रहा है, उसको निस्बत इजाबी भी कह देंगे आप, निस्बत इकाई भी कह सकते हैं, वुक़ूई निस्बत भी कह सकते हैं। और अगर नफी है, और अगर उसमें एक चीज की दूसरी चीज से नफी है, जैसे ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, ज़ैद खड़ा नहीं है, तो इसको निस्बत सल्बी भी आप कह सकते हैं, निस्बत इंतिज़ाई भी कह सकते हैं, और ला वुक़ूई निस्बत भी कह सकते हैं।
تو یہ ہو گئی حکم کی تعریف۔ اس کے بعد مصنف نے باضابطہ کما اذا تصورتا سے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ زید جیسے زید قائم میں تنہا زید کا آپ تصور کریں یا تنہا قائم کا تصور کریں، یعنی قیام کو زید کے لیے ثابت آپ نہیں کر رہے ہیں یا نفی بھی نہیں کر رہے ہیں، نفی بھی اس سے نہیں کر رہے ہیں، خالی قیام کا آپ نے تصور کر لیا یا خالی زید کا تصور کر لیا، تو یہ کہلائے گا تصور، یہ کہلائے گا تصور۔ ہاں جب آپ قیام کو زید کے لیے ثابت کر دیں، قیام کو زید کے لیے ثابت کر دیں یا قیام کی زید سے نفی کر دیں، آپ سلب کر دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تصدیق بن جائے گا۔ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟